Hello students, I am having two cylinders with me. These are right circular cylinders. One is of having red color and another one is of having green color. If I put one cylinder into the another, can I put red cylinder into the green cylinder? No, because the radius of the red cylinder is more than the radius of the green color cylinder. So a green color cylinder can be put into the red color cylinder like this and it forms a hollow cylinder. This is the hollow cylinder. Now, where this hollow cylinder concept is used in our practical day-to-day life, today we are going to discuss about that and how our formulas varies according to the hollow cylinder. हमारे formulas जो है वो किस तरीके से change हो जाते हैं hollow cylinder के case में. Today we are going to discuss about that. Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. So today we are going to discuss the more problems on right circular cylinder and the hollow cylinder. The hollow cylinder concept is used in the dish cable, right? The picture that is drawn on the board is a hollow cylinder, and this hollow cylinder concept is used in your thermos flask in which one cylinder is put into the another cylinder, but the hollow cylinder which I show you, in that particular case these two cylinders are filled with the air, but in thermos flask this cylinder is the gap between the two cylinders is not filled with the air, it is filled with the insulating material. Therefore it keeps your water cold for a long time or hot for a long time, right? Now the internal radius is equal to small r and the external radius is equal to capital R, but the condition should be small r should be less than capital R. Now if I am talking about the surface area of the base, how you calculate? The internal cylinder surface area is equal to pi r square, right? Now the external cylinder surface area is pi capital R square. So the hollow cylinder means the surface area of the base is this particular shaded region. जो ये रीजन है ये एरिया आएगा किसका? सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द होलो सिलेंडर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? इन दैट पर्टिकुलर केस this area comes out to be outer surface area, that is pi r square minus जो inner surface area है that is pi small r square. ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे surface area of the base of the hollow cylinder. ठीक है, अब मैं बात करती हूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर. तो वो कैसे निकालोगे? उसमें क्या होगा, जो आपका ये आउटर सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया प्लस जो इनर सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया, ये आपके दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे. इन दैट पर्टिकुलर केस द सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है. तो इनर सरफेस का जो है, अगर ये एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज एच. इट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, internal as well as external cylinder. So it comes out to be 2 pi RH, that is the internal cylinder area, plus 2 pi capital RH, that is the external cylinder area. Take 2 pi h common and it comes out to be r plus r, right? Now if I am talking about the total surface area of hollow cylinder, that will be the sum of bases as well as lateral surface area. सम ऑफ एक बेस का जो सरफेस एरिया था वो कितना था? पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो टू सरफेसेस का बेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एच आर प्लस आर, ये हो जाएगा. अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है, अभी के लिए एक बार याद कर लो,
जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस फॉर्मूला इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये फॉर्मूला कैसे आया, तो उससे हम ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जब चैप्टर डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू। बट अभी के लिए सिर्फ याद रिमेंबर कर लो कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करो और एक बार क्या करना है, जिसमें से माइनस कर रखा है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो बड़े वाले कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यूज को अगर मैं यहां पर पुट करती हूं तो ये क्या बन जाती है मेरी इक्वेशन, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट टर्म व्हेन आई एक्सपेंड इट। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या बनती है, 2 पाई एच स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। टेक 2 पाई r plus small r common. In the first term you are left with the term r minus r. Second term में आपके पास term बच गई h. So this is the total surface area of the hollow cylinder. ये आपके पास क्या आ गया, total surface area आ गया किसका, hollow cylinder का. In this way these formulas are used for the hollow cylinder. Now based on this we are going to discuss the problems. Now the very first problem is, question is, an iron pipe 20 centimeter long has exterior diameter 25 centimeter. आयरन पाइप है जिसकी लेंथ यानी कि हाइट दे रखी है दैट इज 20 सेंटीमीटर, एक्सटीरियर डायामीटर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस जो है दैट इज कैपिटल आर, वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 12.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, जो हमें दे रखा है, इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर की उस पाइप की थिकनेस है तो इंटरनल डायामीटर जो है दैट इज आर, वो कितना हो जाएगा, दिस 12.5 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, दिस कम्स आउट टू बी 11.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप. अब यहां पर ये गलती मत करना कि आपको एक्सटीरियर डायामीटर दे रखा है और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस दे रखी है, तो डायरेक्टली क्या करो, आप पहले इंटीरियर डायामीटर निकालो और उसके बाद इंटरनल रेडियस निकालो, तो वहां से क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा. पहले इसलिए क्या किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक्सटीरियर डायामीटर दे रखा था, तो पहले एक्सटर्नल रेडियस निकाल लिया, क्योंकि पाइप की जो थिकनेस है वो ऑल अराउंड सेम है, दैट इज 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आप उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे कि पहले इंटीरियर डायामीटर निकाल लिया फिर उसका रेडियस निकालोगे, तो वैसे आपके कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, पाइप की थिकनेस भी कम हो जाएगी. ठीक है, तो वैसे मत करना. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप या होल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एच 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच. दिस इज द formula. Now put all the values. 2 multiply by 22 by 7, capital R is 12.5, small r is 11.5. Here 12.5 minus 11.5 and height is given as 20. Now on solving this, what we got, 44 by 7, this multiply by 24, and here 12.5 minus 11.5 is 1, 1 plus 20 is 21, so cut it, 7 3s are 21. Now 44 multiply by 4 3s are 12, carry गया 1, 72. Now 72 when multiplied by 44, करो multiply 72 by 44, this is 8, 7 4s are 28, so 2 8 8 8 16, carry गया 1, this is 3, 3168 centimeter square. This is the area of the pipe. ठीक है, ये क्या आ गया, आपका area of the pipe आ गया. Now the second problem is, the sum of the radius of the base
and height of a cylinder is 37 meter. It means small r plus h is given to you, that is equal to 37 meter. 37 meter. ठीक है. Now if the total surface area of the solid cylinder is 1628, total surface area of the cylinder is given as 1628 meters square of cylinder. Now find the circumference of its base. हमें क्या find out करना है? Circumference find out करना है. So we all know the total surface area of the cylinder is equal to 2 pi r plus h multiply by r. ठीक है, ये होता है. अब हमें टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना दे रखा है? 1628 दे रखा है. दैट इज इक्वल टू 2 पाई, स्मॉल आर हमें पता नहीं है, बट आर प्लस एच, रेडियस प्लस हाइट का सम जो है वो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 37. ठीक है, पुट ऑल द वैल्यूज. 1628 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 multiply by 37 multiply by r. From here r comes out to be 1628 multiply by 7 and divided by 2 multiply by 22 multiply by 37. ठीक है, 2 से मैं इसको कट करती हूँ, इट गोज ऑन 814. ठीक है, 814 पे गया. 814 को अगर मैं 11 से कट करूं तो वो कट होगा. यस, 11 से कट करते हैं, इसको कट करेंगे 2 पे जाएगा. 11 से 7 7 11 7 जा 77 77 है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बच गया? 4. देन इट गोज ऑन 4. ठीक है, 37 का अगर मैं डबल करती हूँ, दैट इज इक्वल टू 74. तो r कम्स आउट, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल, सो द r कम्स आउट टू बी 7 मीटर. r कितना आ गया? 7 मीटर आ गया. ना अब वो कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस निकालना है. उसने कहा circumference जो है that is equal to circumference of its base is equal to 2 pi r. That comes out to be 2 multiply by 22/7 multiply by 7. That comes out to be 44 meter. In this way you can solve the question. Now the third question is on the board. Find the ratio between the total surface area of a cylinder and its curved surface area. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है. किसका? टोटल सरफेस एरिया का और कर्व्ड सरफेस एरिया का. गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर, h आपको दे रखा है, h इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस r इज गिवन एज 3.5 सेंटीमीटर. नाउ फर्स्टली वी फाउंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. Curved surface area is equal to 2 pi r h. Put all the values. 2 multiply by 22/7 and radius is 3.5 and height is 7.5. Remove the decimal. This is 10. This is 10. 7 5s are 35. 5 2s are, this 2 से 2 cancel. Now this 75 in the table of 5 it comes at 1 5 15. इसको कट करोगे 2, this is 11. ठीक है, अब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास कितना? 165. So this comes out to be 165 unit is centimeter square, right? Now the total surface area, total surface area is equal to 2 pi r plus h. ठीक है, 2 multiply by 22/7 multiply by r is 3.5 and this is 3.5 plus 7.5. ठीक है, तो 7 से अगर मैं यहां से डेसिमल हटाती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. एंड दिस गोज ऑन 5 एंड दिस 5 की टेबल में 2 पर और 2 से 2 कैंसिल. नाउ दिस विल बिकम
22 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो दिस कम्स आउट टू बी 242, right? So the answer comes out to be 242 cm square. Now in the question what is asked? It is asked that find the ratio of the total surface area. रेशियो फाइंड आउट करना है किसका? टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA डिवाइडेड बाय द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 242, दिस डिवाइडेड बाय 165, ठीक है। अब 2 की टेबल में हमारे पास ये जाता है, ये नहीं जाता, बट 6, 5, 11 एंड 1 12, 3 की टेबल में ये जा रहा है, और बट ये 3 की टेबल में 4 + 2 = 6 + 2 8 नहीं जा रहा, तो 242 डिवाइडेड 5 की टेबल में भी नहीं जाता हमारे पास ये। 7 की टेबल में हम देखें तो 7 की टेबल में भी ये नहीं जाता है, तो हमारे पास ये किस में जाता है? 11 की टेबल में अगर मैं देखूं तो 11 की टेबल में यस दिस इज गोन ऑन 11 टेबल, ये भी हमारा किस पे जाता है? 11 की टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो 11 की टेबल पे मेरी दोनों चीज जो है वो कट हो रही है, तो दिस कम्स आउट टू बी 15। 11 की टेबल नहीं सॉरी 11 की टेबल पे अगर मैं इसको कट करूंगी तो ये जाएगा मेरे पास 2 22, और इसको मैं कट करूंगी तो दिस गोज ऑन 1 एंड 5, तो रेशियो कम्स आउट टू बी 22/50। दिस इज द रेशियो ऑफ total surface area divided by curved surface area. In this way you can solve the question. Now the next question is, a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. एक रोड है, उसको लेवल करने के लिए रोड रोलर जो है वो 750 complete revolutions जो है वो लेता है। Now find the area of the road if the diameter of the road is 91 centimeter. Diameter जो है that is given as 91 centimeter. So road roller है, ठीक है, तो उसका सरफेस मतलब जो उसकी शेप है that is cylindrical in shape. So यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूं तो that comes out to be diameter का half, that is 91/2 cm, right? Now and the length is 1.25 meter. It means h is given as 1.25 meter. Now both the units are different, one is in cm and another one is meter, so convert in the same unit. Either you have to convert h into the centimeter or r into the meter, right? So first I am converting this r into the meter, and this value is divided by 100, 91 divided by 100, so it will becomes 91/200 meter. Now अब रोड रोलर है तो हमें यहाँ पर वो रोल करेगा तो उसमें बेस का कोई रोल नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2πRh, 2πRh। नाउ 2π की वैल्यू इज 22/7, r वैल्यू इज 91/200 and h is given as 1.25, right? This value is given like this. Now cut this value, 7 से अगर मैं इसको कट करूँ it goes on 1 and 3 13, अगर मैं इसको 2 से कट करूँगी तो this becomes 100 and this is cancel out. Now this will come out to be 22 multiplied by 13 multiplied by 1.25 and this whole is divided by 100. Values are in meters, so the curved surface area is coming into the meter square. This is how we can calculate the curved surface area. Now in the question we have to find out the area of the road. Area of the road is area of the road. Road roller takes 750 complete revolution, so area of the road is 750 revolutions multiplied by curved surface area that we calculated. This is the curved surface area, that is C.S.A. Now put the values 750 multiplied by 22 multiplied by 13 multiplied by 1.25 and this is divided by 100. Right, now
इसको यहाँ से हटाते हैं तो 1 मोर टाइम्स दिस इज कमिंग आउट. नाउ अब कैलकुलेट करते हैं. 75 मल्टीप्लाई बाय 22, this comes out to be 150 multiply by 150. 0 5 6 1 1 6 5 0. Now 13 when multiplied by 125, 125 multiplied by 13, this 5 3s are 15, 5 12 6 1 1 6 2 5. This divided by 10 multiplied by 100, 10 multiplied by 100 cancel out. Now 1625 when multiplied by 165, 1625 when multiplied by 165, now this is 2 5 11 carry गया 1, 16 on 2 18 carry गया 1, 16 carry गया 1, this is 2. Now this comes out to be 2 6 8 1 2 5 and this is when divided by 100. So the area comes out to be in this particular case is 2681.25 meter square. In this way we can solve the question. Now the next question is a company packages its milk powder in cylindrical containers whose base has a diameter of 16.8 centimeter and height is 20.5 centimeter. Let me draw the first cylindrical shape and the diameter of the base is 16.8 centimeter and the container size or you can say height of the container is 20.5 centimeter. Company places a label around a curved surface. कंपनी क्या करती है, इस कर्व्ड सरफेस के अराउंड जो है उसको क्या करना है, अपना लेबल जो है वो प्लेस करना है. इफ द लेबल इज प्लेस्ड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप जो है वो गैप छोड़ दिया जाए एंड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से भी 1.5 सेंटीमीटर का जो गैप है वो छोड़ दिया जाए. दिस इज 1.5 सेंटीमीटर. नाउ what is the surface area of the label? You have to find out the surface area of the label. अब diameter कितना दे रखा है, 16.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस r जो आएगा that comes out to be 16.8 divided by 2, that comes out to be 8.4 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर. अब सरफेस एरिया हमें इस कंटेनर का फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट किसका करना है, सरफेस एरिया ऑफ द लेबल. सो लेबल के लिए हाइट जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर दैट इज 2.5 20.5 माइनस 1.5 फ्रॉम द टॉप छोड़ दिया उसने, दैट इज माइनस 1.5. 1.5 जो है वो उसने बॉटम से छोड़ दिया, तो ये आएगा हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट कम्स आउट टू बी 17.5 सेंटीमीटर. नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द लेबल इज, सरफेस लेबल जो है वो कर्व्ड सरफेस पे लगा है, तो सरफेस एरिया ऑफ द लेबल इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस. ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय h. ठीक है, अब h यहां 2 मल्टीप्लाई बाय पाई वैल्यू इज 22/7, पाई r is given as 8.4 centimeter and h comes out to be 17.5. Remove the decimal, this comes out 10. यहां डेसिमल रिमूव किया, ये 10. 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 84 7 से डिवाइड होता है. दिस गोज ऑन 1 to 12. राइट नाउ
22, this 2 is multiplied by 22, it comes out to be 44. 44 multiplied by 12 multiplied by 175. This divided by 100. Now multiply 175 by 12. 175 by 12. This is 5 to the 10, carry gaya 1, 15, carry gaya 1, 350, and this is 175. 0, 10, carry gaya 1, 2, 2100. Now this is 2100 multiply by 44, this divided by 100. 0 से 0 cancel out. Now when 21 is multiplied by 44, 44 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 44, दिस इज 88, 4, 12 कैरी गया 1, दिस इज 924. So the answer comes out to be 924 and unit given are in centimeter. So the surface area of the label is 924 centimeter square. In this way we can solve the question. Now the last question for today is, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर. खाली सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है दैट इज गिवन एज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द लेटरल सिलेंडर ठीक है. अब लेटरल सरफेस एरिया जो गिवन है हमें, वो गिवन है कितना, 4224. सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज कट अलोंग इट्स हाइट. अब क्या कर दिया, इसको इसकी हाइट के अलोंग कट कर दिया. कट करना है तो क्या होगा, कल मैंने दिखाया था किस तरीके से शीट को हम सिलेंडर को कट करके एक शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्म्ड रेक्टेंगुलर विड्थ जो हुई उसकी वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है. विड्थ मीन्स जो ये हाइट है दैट इज 32 सेंटीमीटर. अब जब इस लेटरल सरफेस एरिया को कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इस तरीके की रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी एक. और रेक्टेंगुलर शीट की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. वो किसके इक्वल है, 32 सेंटीमीटर के इक्वल इसकी हाइट है. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द शीट, तो शीट की लेंथ क्या आएगी, अगर मैं इसको कट करूंगी मींस एक ही साइड से कट लगाऊंगी, या तो फ्रंट से लगाऊंगी या इसकी बैक साइड से लगाऊंगी, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो शीट आएगी इसकी लेंथ जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. बिकॉज ये जो है सिलेंडर जो है वो एक किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है. तो यहां पर इसकी लेंथ जो आई दैट इज 2 पाई आर. नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया. एक सिलेंडर था, एक सिलेंडर को जिसकी हाइट जो गिवन है वो क्या है, विड्थ जो गिवन है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है. सिलेंडर को कट किया है उसकी हाइट के अलोंग. जब हाइट के अलोंग कट करेंगे तो उसको कट किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे. मैं क्लियर कट शो करती हूँ. जैसे मैंने ये फ्रंट से लेकर के ये आगे वाले पोर्शन को कट किया, पीछे वाले पोर्शन को कट नहीं किया. तो ये जो है ये कन्वर्ट हो गया मेरा किसके अंदर, शीट के अंदर. शीट की हाइट, अब यहाँ स्पेस नहीं है, अदरवाइज दिस हाइट विल रिमेन द सेम. ये हाइट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो रेक्टेंगुलर जो शीट आई उसका हाइट जो आएगी दैट इज 32 सेंटीमीटर. नाउ जब ये ओपन हो गया तो अब ये जो है ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है. तो सर्कुलर के फॉर्म में जब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर. वो मेरा क्या बन जाएगा, शीट बन जाएगी. ये मैंने कल आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाया था कि एक शीट को सिलेंडर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या सिलेंडर को शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को रिमूव कर रही हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. So the length of the sheet is, length of the sheet is 2 pi r.
ठीक है, अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एंड हाइट इज गिवन एज 32 सेंटीमीटर। हाइट जो गिवन है वो 32 सेंटीमीटर है। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये होता है। अब ये गिवन है मेरे को 4224, 2 पाई आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है बट एच की वैल्यू मुझे पता है 32 है। तो पुट दैट 4224 is equal to 2 multiply by 22 by 7 multiply by 32 multiply by r। ठीक है, अब r की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो दैट कम्स आउट टू बी 4224 multiply by 7, this divided by 2 into 22 multiply by 32। 2 से इसको कट करते हैं तो ये जाता है 2112 पर। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से कट करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 11 पर और ये फिर से किस पे जाएगा 1056 पर। ठीक है, अब 1056 को फिर से मैं 2 से कट करती हूं तो ये गया मेरा 16 पर एंड दिस गोज ऑन 528। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख लेती हूं ताकि कैलकुलेशन आपको फिर से समझ में आ जाए। 528 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिनोमिनेटर में है 11 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये फिर से हमारा 2 पर चला जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 से इसको मैं कट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 और ये आ जाएगा 2 एंड दिस 12 6 4। फिर से 2 पे जाएगा तो दिस गोज ऑन 4 एंड दिस इज 132। फिर से 2 पर जाएगा, दिस इज 6 एंड 6 66। नाउ ये अगर मैं 6 से कट करूंगी तो 6 पर 2 जाएगा, ये जाएगा 3 पर। सो द आर कम्स आउट टू बी 21 सेंटीमीटर। नाउ द लेंथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द शीट जो है वो कितनी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। सॉरी, आर जो आया है इसको सॉल्व करके वो मेरे पास कितना आता है 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। अब लेंथ ऑफ द शीट जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर। सो 2 multiply by 22 multiply by 7, this multiply by 21. So 7 3s are 21. ठीक है, this is 4 multiply by 44 multiply by 3 and the answer comes out to be 132 centimeter. ठीक है, अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। So the perimeter of the rectangular sheet is perimeter is equal to 2 times of length plus breadth और you can say width। अब यहां पर width जो है वो ऑलरेडी गिवन है दैट इज इक्वल टू 32। सो 2 times of 132 plus 32, this is equal to 2 times multiply by 164 and this comes out to be 328 centimeter। ठीक है, as the units are given in centimeter। so the perimeter किसका of the sheet, शीट का जो पेरीमीटर है दैट कम्स आउट टू बी 328 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।